last session we were discussing about creation of tables, right? So quickly starting with the things. Okay, I'm sharing my screen, and I told मैम you, yeah. मैम लास्ट क्लास के जो प्रीवियस क्लास में हुआ था मैम, क्या आप उसे शॉर्ट में फिर से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब लास्ट क्लास में आया नहीं था मैं। Can you just refer the recording because every session is being recorded now. ओके मैम। Otherwise, see, the things are very simple. We discussed. We just created a database. We just created tables into it. Okay. Just give me 1 second. I am having one database with me where the tables are being created. And yeah, salary changes. Okay. And then I have country, department, dependent, employee, job, location, region. Countries, job, location, region. Yeah. Okay. So this is my database, which I already having. Okay. That is a HRDPT 22nd May. Okay. So this database is the same case study which we are discussing, and the same tables I do have here. Okay. And in this, I already created, basically, I already made entry of the values into it. Okay. So today we are now talking about DML commands. Okay. See, using DDL, we had already created the schema. DDL command से हमने create किया है, database create किया है, table create किया है. Okay. अब हम DML command से क्या create enter करने वाले हैं, उसके अंदर value enter करने वाले हैं. Okay. So let's talk about DML commands. So for that, I'm sharing again. 1 second. Just give me 1 second. Just give me 1 second now. I'm just looking into my content. So DML commands are the data manipulation commands where we will be manipulating our database. Okay. But before to that, I think we had already discussed about data type. Yes, yesterday in the last session only we discussed. Yeah, no, something like I am expecting some reaction from your end. Yes, ma'am. We already discussed data, basically base, what I say, the data type, right? And this data type we discussed, and after that only we created the tables. Okay, so the schema is being created. After that, we are now talking about DML commands. Now, what exactly the DML commands means? DML commands are basically manipulation, data manipulation. Once your schema is being ready, it means that your database is being ready. Okay, I'm just drawing the diagram here. Your tables are being created. Okay, so your tables are being created. Now, already I had shown you how to create tables in the last session itself, right? After that, we will be entering value into these rows and columns. Okay, respective rows we are entering the value. So whatever be the value we want, we are going to enter it. So when we are entering, it means that we are doing manipulation. Okay, हम जब value डाल रहे हैं table में, मतलब हम उस table के structure में अब manipulation शुरू कर रहे हैं, मतलब हम insert कर रहे हैं. So DML commands are the commands which are closely, or we can say it's mainly for the handling manipulations. Okay, manipulations on your database, manipulations on your table objects. Okay, anyone having any doubt till now, so that I can start proceed with the DML? नो मैम। Okay, fine. So DML command, the very first command is the insert one. What do you mean by insert command?
Ma'am, the insert command is used to like add values in a particular column of a table of the database. For example? Ma'am, for example, if we have like a student table and we want to add values in it, so we'll just write a statement like insert uh ins insert student, and then we'll in the brackets we'll write all the variable names like student id, student name, and then and I've close the bracket and then write values, and then ma'am beneath that we'll just write all the value write all we'll just insert all the values in a sequential order. For example, if we have student id written first in the table and then the student name, so first ma'am we'll enter the student id and then the student name after the insert statement is passed. Exactly. So basically, when we created a table, so we had given the instruction to the SQL server that ये table में इतने columns रहेंगे. Let's say example, we talk about our case study only. Okay. So what was our case study? So in our case study, one second, I'm just closing few things which is not at all useful for us. Okay. So I'm just closing this. I'm just closing this. Yeah. Just give me 1 second. I'll just check anything else additionally is open. Nothing else. Okay. So if you just see here, okay, and I think we had created something like a what's the name we created? A Stool-Learn, right? So Stool-Learn HRMS database we created, and after that we created a few tables into it. Like we created a countries and region table into it. And while creating it, okay, जब हमने इसको बनाया तभी हमने इसके column name और वो column name का data type mention किया था, अगर आपको याद होगा तो. Yes or no? Yes, ma'am. Right. So for example, if you just want, I can just show you one more example here itself only. So we start our query editor again. Okay, हम Stool-Learn में ही है अभी और हमने region और country table बना लिया था. So let's create a location table. Okay, I'm just creating so that those who have not attended yesterday last session, they can also relate what we are talking. Okay, so now I am creating table here. Create table. What is the name of table? Locations table I am creating with the syntax here, location ID, okay, int, identity, 1,1. ये syntax हमने already discuss कर चुके हैं, क्यों ये format है, क्यों primary key देना है, everything we discussed in the last session. Yes or no? Yes, ma'am. See, if anyone having any kind of doubt, okay, considering कि आपने attend किया है और आपको कुछ doubt है, तो definitely we can discuss. Or else, those who had not attended, unfortunately, because of any reason, उनको recording success होती है ना? Yes or no? Do you get access of recordings? Yes, ma'am. है ना? तो जो लोगों ने अटेंड नहीं किया है ना, उनको मैं बोलना चाहूंगी कि दे शुड गो विद द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, और फिर जब अगर नहीं समझ रहा है तो दे कम विद द डाउट्स. ओके, तो जिन्होंने मुझे पूछा था कि आप मुझे ब्रीफ में बता पाएंगे क्या, तो मैं बता पाती बेटा, लेकिन क्या है कि वी आर हैविंग हार्डली 1 hour टू कंप्लीट द थिंग्स. ओके, एंड देयर इज अ वास्ट टॉपिक टू कवर, right? So I cannot revise the things, but I am trying to explain you with the help of this table creation. तो हमने पहले वाले सेशन में we had discussed data types. मतलब हर एक डेटा का एक टाइप होता है, कुछ वेरिएबल होते हैं, मतलब कुछ what I say the numeric डेटा होता है, कुछ स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, कुछ डेट टाइम टाइप का डेटा होता है, और फिर हम उसको डिफाइन करते हैं हमारे टेबल के लिए कि एक पर्टिकुलर कॉलम किस टाइप का रहेगा. तो वो डिफाइन करता है, मतलब हम वी आर मेकिंग द definition. Okay, we are creating the structure. Okay, structure of a table. So structure of a table being created with the help of DDL command, that is data definition language. Okay, so create command is a command we are giving to my SQL server that I want to create a table location with followed with certain column names here. Okay, Yes, ma'am. okay. Now, so now the location, okay, location table must followed with the location ID.
Okay, so these are the constants we discussed already. So please, I request everyone or those who had not attended, for them specially, please go through the recording first, and then if you don't understand any kind of basically concept which we discussed in the last basically session, you can discuss me in the next basically coming session with your doubts. Okay, I will definitely take your doubts all there. Okay. Then postal code will be the varchar one, and I will be just having another thing what we can consider here. City we will be considering. Okay, so city is again a varchar type. Okay, so say let's say varchar 30. Okay, and not null again. Then state or province we can consider as a province. Okay, PROVEVINCE, province. Okay, varchar, and what should be here again? I'm just taking a 30 only as default. Once again, null. Then we are having country, because see location kahan rahega, it must be in some country, uska kuch relation hoga country table se. ऐसे मतलब एक सिंपल अलग सा लोकेशन नहीं रहेगा, it will never be a alone, it must be under the country, right? So country ID will be the foreign key here. Okay, so country ID कौन सा टाइप का था? char टाइप का था, if I am not wrong, because here country ID is of the char type. Look at this, यहाँ पे देखो आप, कंट्री का टेबल खोला हुआ है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दिस इज अ char type, right? So I had to mention char here. Okay, and then not null, because it has to be some value, it's a foreign key, and basically it's a primary key in the country table. Okay, and we are using it foreign key in the location table. Okay, then we have to mention it कि ये foreign key है. Okay, and we had to give the references. Okay, so try to give the exact spelling, REFER. Okay, ENCS, references. Okay, from where it comes, ये आ रही है हमारी country नाम के टेबल से. So country नाम का जो टेबल रहेगा, अगर आपने COUNTRY दिया है तो आपको वो लिखना है. अगर आपने COUNTRIES दिया है, जैसे कि मैंने IES दिया है, तो आई हैड टू फॉलो द सेम नेम. अगर यहाँ पे मैंने गलत नाम दिया, बाई चांस मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स गलत किया, तो वो एरर देगा. ओके, सो इट हैज टू बी प्रॉपरली written or here. Okay, ये कुछ मतलब I would say these are the key things you need to be very careful. अदरवाइज सीक्वल जो है वो तो केस सेंसिटिव है ही नहीं, लेकिन जो यूजर डिफाइंड है, जैसे कि टेबल का नाम हो गया है ना, कॉलम का नाम हो गया, ये तो यूजर डिफाइंड है. तो वो यूजर डिफाइंड जो भी रहेगा वो आपको याद से बराबर उसका स्पेलिंग लिखना है. ओके, and that's it. By closing this bracket, this is my complete country table, sorry, location table. Okay, now how I'm going to do this, I'll be selecting it. Okay, and I'm executing. So once I am get executed, if you see here the command completed successfully, it means that table is being created. Okay, table is being created. Now how you are going to see that where it is being created? So you can just refresh it. Your database need to be refreshed. Okay, and again go back to the database, and you can see that countries, locations and region, 3 tables are being created here. So countries और region तो पहले से created था, last time हमने बनाया था. Location just now we created. Yes or no? Are you able to understand this now? Yes, ma'am. Now quickly what we are going to do. Okay, what I will do is I will be creating this complete basically table only. Okay, for just to understand table creation very clearly. So I'm again creating another more table here. So after location, I'm creating a jobs table. Okay, so the create table jobs. Okay, jobs भी एक हमारा टेबल था ना. देखो यहाँ पे हमने केस स्टडी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. कहाँ गया हमारे टेबल्स, हमने डिफाइन किए थे ऊपर कहीं, तो एंटिटीज डिफाइन की थी. देखो यहाँ पे जॉब्स है.
राइट? तो अभी हमारे कौन से टेबल्स बन चुके हैं? So we had created region here, region done, country done, right? Location done. Yes or no? Now we are creating jobs. So okay, are you understanding ना? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे टेबल्स क्या क्या रहने वाले हैं, अब हम वो बस बना रहे हैं. ओके, job ID, obviously it will be the primary key here. Identity 1,1. Then primary key here. It's a primary key, so I had to mention that it's a primary key. Okay. Then we will be having job title. Varchar 35. I just take a 35 here, not null. Okay. Then I मैम am having, yeah. मैम 1,1 क्या है? व्हाट इज 1,1? हाँ, मैं बताती हूँ आपको. क्या होता है कि एक किसी भी टेबल, अब टेबल जो रहता है, एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर आप टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें ऑर्डरिंग रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, कुछ तो ऑर्डरिंग लिखेंगे ना हम हर एक रो के आगे. यस और नो? अब वो ऑर्डरिंग जो है वो तो हमको इस जॉब आईडी से मिल जाएगा. ओके, पर इंटरनली सर्वर भी, मतलब जो सीक्वल सर्वर हम यूज कर रहे हैं, वो इंटरनली भी एक ऑर्डरिंग मेंटेन करता है. मतलब वो एक के बाद एक नेक्स्ट रो में जाके वैल्यू एंटर करेगा. मतलब अभी तो हम सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं. जब इंसर्शन का प्रोसेस होता है ना, तो पहला जॉब आईडी आया, फिर उसके बाद जाना चाहिए दूसरा, राइट? तो पहले के बाद जाएगा दूसरा, इसलिए 1,1 मतलब उसके बाद ऑर्डरिंग कर रहे हैं, उसके बाद. गॉट इट? यस मैम. Then we in the jobs we already discussed that कि जॉब टाइटल रहेगा और उस जॉब को लेके, मतलब वो जो जॉब है, जैसे मान लो कि मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, या एचआर मैनेजर है, ये जो जॉब्स है, ओके, ये जो है ये जॉब्स हुए, मतलब ये रोल्स हुए किसी भी एम्प्लॉय के. अब उस डिपार्टमेंट में या उस रोल का एक रहेगा मिन सैलरी, मतलब उसकी कितनी मिनिमम सैलरी रहेगी, राइट? सो मिनिमम सैलरी नाम का एक कॉलम बनाएंगे जिसको हम लेंगे डेसिमल. ओके, डेसिमल 8,2. I'll just make a default null here. And max salary, है ना? So max salary, again it will be the decimal time, and again it will be the 8,2. And I'll just make it as a default null. That's it. So this is my complete table. यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा हमारा, job table इतना ही है सिर्फ, and we will be executing it. Now, how many tables we created? We will be having now 4 tables, and I'm just refreshing this database, and I'm just showing you like how the table is being created. Now we are having countries, jobs, location, and region here. Are you able to see? And please make sure that if you observe here, भले ही हम टेबल किसी भी ऑर्डर में बना रहे हैं, अभी हमने जॉब बनाया, लेकिन जॉब जो आ रहा है वो कंट्री के बाद आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी आप सर्वर यूज करो या सीक्वल, जैसे वी आर यूजिंग सीक्वल हियर, बट अगर आप एनी एनवायरनमेंट यू आर यूजिंग, you will find that table objects within a database is always in the ascending order of the names, है ना? C के बाद J. अगर आप A से कोई नाम लिख रहे हो टेबल का, तो वो सबसे पहले आएगा. This is what I want to convey here. Okay, तो ये ऐसे ना छोटे छोटे से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं normally when you are going for fresher level interviews or intern level interviews. So that time they may ask you such kind of small questions. So you should be very clear. उनको ये, उन क्वेश्चन से उनको ये पता चलता है कि आपने सही में किसी डेटाबेस पे काम किया है. ओके, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, कि आपको वो एनवायरनमेंट पता है. वो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे. सो बी क्लियर विद इट. इज इट क्लियर ना? यस मैम. Yes, ma'am. Now I want, now Excuse this me, is ma'am. my yeah. Ma'am, is there any difference when we use semicolon or colon? Because after default null you use comma here. Yeah. So and last time you have used when you were creating reason table,
default, after default you have used semicolon. So is there any difference, or we could use anything? No. Here, the important thing is whenever you are ending any statement in the SQL, it has to be with the semicolon. देखो यहाँ पे ये end हो रहा है, मतलब ये table बन चुका है. Okay. यहाँ पे ये table बन चुका है. So you have to follow that syntax. Okay. और अगर आपने देखा होगा कॉमा इसलिए दिया है क्योंकि उसके बाद एक और कॉलम ऐड हो रहा है ना. Okay, मैम, गॉट इट. खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे. इट्स नॉट एंडेड. ओके, इसके बाद मैं फॉरेन की का रेफरेंस ऐड कर रही हूँ, या इसके बाद इस कॉलम, इस स्ट्रीट एड्रेस के बाद मेरे पास पोस्टल एड्रेस ऐड होने वाला है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगी. यहाँ पे अगर मैं कॉमा नहीं दूंगी तो वो सिंटेक्स एरर देगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे टेबल खत्म हो गया है क्या. Okay, ma'am. We could use comma if we are not ending our table, and Exactly. you will use semicolon when we are going to end our table. Exactly. Okay, ma'am. Is Thank it clear now? Yes, ma'am. Thank you. Okay, fine. Now this is what we did. We just completed a DDL understanding, matlab data definition language understanding, where we created the tables. Okay. अभी मैं आपको I will just giving you 2 assignments, or I would say just a simple homework I am giving you here. Okay, try to do it. Okay. यही लिखूं या इस पे यहाँ पे लिखती हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे नोट्स में. Okay, what's the date? 28 August is the date. Okay, and what is the homework? Okay, DDL commands का पूरा आपको केस जो है हमारा, okay, HRMS. Okay, you had to create a database and table objects in that database. Okay, तो यहाँ पे आप सिर्फ create demonstrate कर रहे हो, right? Once you done with this, you have to also demonstrate. यहाँ पे ये homework है. You have to demonstrate delete and alter commands, because those commands are also from your DDL, right? Yes or no? Am I audible and clear to you? What assignment I had given you? These are the 2 things I had given you. मैं चाह रही हूँ कि सबके पास मेरे जैसा डेटाबेस रेडी हो, जिसके ऊपर मैं काम करके आपको दिखाने वाली हूँ. सेम वैसे का वैसा डेटाबेस आपके पास भी होना चाहिए. ओके, क्लियर है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Fine. Now, as I told you that we are having alter command, or we can say the delete command also, right? Not delete, we are having drop command, जो काम करती है delete जैसा. Okay, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिया है delete, but delete नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा drop. I'm so sorry for it. Okay, drop command. Okay, अभी मैं आपको एक drop command execute करके दिखाती हूँ. How we are going to drop any table से, let's say हमको ये job table जो अभी बनाया उसको drop करना है. So drop table and the table name. Clear? Drop table name. Okay, मतलब इसका syntax क्या होता है वो बता रही हूँ आपको. Drop table, और यहाँ आएगा आपका जो भी आपने टेबल नेम दिया होगा, वो जिसको आपको ड्रॉप करवाना है वो आपको लेना है. ये आपका सिंटेक्स है. दिस इज योर सिंटेक्स. आप सिंटेक्स टर्मिनोलॉजी से फ्रेंडली हो ना, मतलब ये आपके लिए नया वर्ड तो नहीं है ना. सिंटेक्स मतलब इस तरीके से लिखना रहता है, मतलब ये एक जेनरिक टर्म है या जेनरिक फॉर्मेट है. ओके, तो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे टेबल नेम क्या है, लेट्स से जॉब. तो जॉब मुझे डिलीट करना है. आई विल जस्ट डिलीटेड अ जॉब हियर. ओके, वंस आई डिलीटेड अ जॉब, सो यू विल नॉट सी जॉब्स इन माय डेटाबेस एनीमोर. ओके, देखो जॉब टेबल गायब हो गया यहाँ से. Have you observed this? Yes, ma'am. Now, what is the next thing I am doing here is insertion. Okay, so let's talk about the
DML कमांड्स, जहां पे हम बात करेंगे हमारे DML कमांड्स की। अगर जैसे मान लो कि मुझे ड्रॉप कमांड की जगह पे अगेन आई वांट टू क्रिएट अ टेबल जॉब्स, so I will be creating a job table here again, okay? And if you want to see कि जॉब टेबल बना है क्या, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो दैट टेबल इज बीइंग क्रिएटेड और नॉट। Look at this, the job table is now again recreated, or else you can also have a select star from jobs। ये कमांड अगर आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हालांकि अभी हमने वो टेबल में कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं किया है ना, अभी वी आर नॉट अंडरस्टैंड DML कमांड्स। हम नाउ वी आर entering the value, now we are inserting the value, so we will see the one by one values into it। Is it clear? So let's talk about insertion commands here, okay? So where is my so DML, that is data manipulation language. So the very first command is insertion, means once your table is being created, now you are in the position to write insertion commands on the table objects, okay? अगर आपका टेबल बना नहीं रहेगा और आप इंसर्ट करोगे तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, वो एरर देगा, ओके? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। सेकंड, व्हाट यू हैव टू डू इज you have to create a tables, okay, followed with proper rules and regulations, and then next is insertion, okay? Now we are in the position to write, or we are in the position to insert something into our tables which we created just now, okay? So what is our table first we created? तो हमारे पास रीजन टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ओके? तो हम रीजन टेबल के लिए बात करते हैं। ओके, सो जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमको एक आइडेंटिटी सेट करना पड़ता है, ओके? सो वी हैव टू इंस्ट्रक्ट आवर सर्वर और एनवायरनमेंट की सेट आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी? मुझे क्या करना है, इस टेबल पे इंसर्ट करवाना है, तो मैं आइडेंटिटी इंसर्ट ऐसे लिखूंगी। किसके लिए? रीजन्स टेबल के लिए, ओके? सो आई एम हैविंग रीजन्स टेबल इज ऑन, अभी मैंने ऑन करी है, ये आइडेंटिटी इज नाउ ऑन। इसके पहले अगर इफ आई ट्राई टू डू इट तो वो इंसर्ट नहीं होता वैल्यू, अब इसके अंदर इंसर्ट होगा, ओके? अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट होगा, किसके अंदर? रीजन टेबल के अंदर, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी का कांस्टेंट डाल के रखा हुआ है। रीजन्स, ओके, रीजन्स में क्या है, मेरा रीजन आईडी है, राइट, एंड रीजन नेम है, राइट, ये तो है ही। अब इनकी क्या लिखना है, मुझे वैल्यूज लिखना है, राइट? तो सबसे पहले मैं वैल्यू दे रही हूँ 1 डायरेक्टली क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जो रीजन टेबल का आईडी है वो है मेरा पीके इंटीजर। जब आप कोई भी वैल्यू इंटीजर टाइप की रहती है उसके लिए आपको डायरेक्टली नंबर लिख के छोड़ देना है, और वेरएज वही वैल्यू अगर जब वैरचर रहती है या कैरेक्टर रहती है या स्ट्रिंग रहती है उसको आपको सिंगल कोट्स में लिखना है। ये रूल्स है, ये फॉलो ही करने पड़ेंगे इफ यू आर वर्किंग विद द SQL सर्वर। अगर आप MySQL पे काम कर रहे हो वहां पे भी ये सिंटेक्स रूल्स फॉलो होंगे। इफ यू आर वर्किंग ऑन Postgres, still there also the rules are remain same। Is it clear now? I'll be having Europe here, and that's it। Look at this, one row affected। See, try to understand, जो पहले commands थे उसमें सिर्फ compilation हो रहा था, just we are able to see the command successfully completed, but when it comes to DML commands you will see the row is being affected। row is being affected मतलब क्या? एक रो ऐड हो चुका है। अगर आपको चाहिए कि मुझे देखना है कहाँ पे ऐड हुआ है, कैसे ऐड हुआ है, so you can even see also कि हाँ ये ऐड हुआ है कि नहीं। how you are going to see it? You just write select star from
regions. करो execute, you will see it. Look at this one and Europe. हाँ, अब मैं बात करती हूँ. देखो रीजन आईडी 1 डाला, लेकिन यहाँ पे 1 दिख रहा है उसके पहले आपको? सभी को दिख रहा है क्या? यस मैम। So this is your identity. This is your identity. मतलब ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, सर्वर के अंडरस्टैंडिंग के लिए. रीजन आईडी 1 है ये यूजर अंडरस्टैंडिंग. यूजर मतलब हमारे जैसे लोग, आप, मैं, उनको पता है कि हाँ ये रीजन आईडी 1 पे यूरोप है. लेकिन सर्वर को कैसे पता रहेगा कि यहाँ पे एक रो एंटर हुई है? बाय हैविंग आइडेंटिटी 1,1. और वो 1,1 कैसे हम इंसर्ट करते हैं? जब हम टेबल बनाते हैं. वो एक रूल है. ओके, हम वो रूल की तरह से फॉलो करेंगे. पर हमको अगर आइडेंटिटी 1,1 नहीं भी देना है तो भी हम टेबल बना सकते हैं. पर उस केस में वो जो टेबल रहेगा वो सर्वर के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको फिर वहां पे अलग जाके रूल्स लगाने पड़ते हैं. तो जब हम डिफाइन ही कर रहे हैं स्ट्रक्चर, जब हम स्कीमा डिफाइन करते हैं तभी हमको वो कंस्ट्रेंट्स लगाने चाहिए. दिस इज अ राइट प्रैक्टिस. मतलब ये एक सही तरीका है. ओके, टेबल बनाने का. और टेबल बनाने के बाद उसमें वैल्यू इंसर्ट करते टाइम आइडेंटिटी को आप ऑन करोगे. ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। आप मेरे साथ ही कर रहे हो सब लोग कि लाइक यू आर जस्ट लुकिंग इनटू फर्स्ट माय स्क्रीन एंड देन यू विल डू इट आफ्टरवर्ड्स? आप लोग मेरे साथ कर रहे हो कि आप बाद में करने वाले हो? Now, if I just select it and again I want to see, then 2 rows are being inserted. Are you able to see? मैम, Yeah, can you please share this SQL query, ma'am? sure. See, what I'm doing is I'll be inserting all the values first. Okay. और ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके आपको मैं चार्ट में देती हूँ, चलेगा? तो आप पूरा का पूरा Yes, ma'am. वैसे के वैसे आप वहां पे पेस्ट करो और एग्जीक्यूट करो, तो आपको भी सेम वैल्यूज मिलेंगी जो मैंने एंटर करी है. मतलब हमारे जो क्वेरीज हम इंसर्ट डेटा एनालिटिक्स करेंगे, मतलब उसके ऊपर जब डेटा एनालाइज होगा तो आपको और मेरे को दोनों को रिजल्ट सेम मिलेंगे उस केस में. मैं सिर्फ रीजन टेबल में आपको इंसर्ट करके बताने वाली हूँ. द रिमेनिंग थिंग आई विल बी गिविंग यू अ कंप्लीट स्क्रिप्ट. ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ रीजन टेबल में बता रही हूँ मैं. अगले और सारे टेबल्स में मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट देने वाली हूँ नोटपैड में. आपको बस एक एक लाइन ऐड पेस्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, पेस्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है. आप कर पाओगे सब लोग? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी उसमें करने में? No, ma'am. आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना अभी ये सब? अभी ये जो शुरू हो गया उसके इसमें से, क्योंकि पहले तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली करने लग गए हैं सीक्वल. तो आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना? क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ये आप खुद से जब करोगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मुझे करते आ रहा है. Look at this. The four rows are being inserted here. Are you able to see the region ID and region name respectively?
ओके, अब मुझे इसके आगे इंसर्ट नहीं करवाना है, अब मुझे उसकी वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सेट, पहले मैंने आइडेंटिटी सेट करी थी ना, ऑन कर दी थी आइडेंटिटी इंसर्ट करने के लिए। अभी इसको मतलब कोई कोई और आके या कोई दूसरा यूजर उसमें कुछ चेंजेस ना करे, इसलिए मैं क्या करूंगी, insert into the regions table, I will make it off. Got it? अब आगे इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये टेबल फुल एंड फाइनल बन चुका है। क्लियर? हेलो, क्या? सॉरी टू इंटरप्ट मैम। लाइक मैम, आपने यहाँ इंसर्ट इनटू एंड वैल्यूज मतलब हमेशा लिखना होगा क्या, लाइक जब भी हम वैल्यूज इंटर करेंगे उसमें? One second. I'm just sharing this. Sheila is going, everyone in the meeting, I'm just going to give this. One second. Yeah. What question you had asked me? Can you just repeat the question? या मैम, लाइक आपने इंसर्ट इनटू वैल्यूज एवरी टाइम लिखा था, लाइक क्या मतलब ये हमेशा लिखना होगा क्या जब भी हम वैल्यूज एंटर करेंगे उसमें, लाइक? देखो, दो तरीके होते हैं एक्चुअली उसमें, कि आप इंसर्ट इनटू रीजन और डायरेक्टली वैल्यूज करके भी लिख सकते हो। ओके, पर ये जो मैंने ओके। आपको बताया है ना, दैट्स अ राइट प्रैक्टिस, मतलब उसमें कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। आपने देखा ओके। क्या मेरी कोई भी एरर आई? नहीं आई। क्यों नहीं नो आई? मैम। क्योंकि मैंने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका फॉलो किया है। ओके, अगर मैंने शॉर्टकट वे भी है उसको, मतलब डायरेक्टली आप उसकी वैल्यूज एंटर करते चलो। अब जब वैल्यूज आप एंटर करते हो ना, तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सा कॉलम वैर कैर है, कौन सा कॉलम कैरेक्टर है। अभी तो सिर्फ दो ही कॉलम थे इस टेबल में, तो हमको पता है कि पहला वाला इंटीजर था, दूसरा वाला वैर कैर था, तो बात खत्म हो गई। वहां पे एरर आता भी नहीं अगर मैं शॉर्टकट लेती तो भी। पर आप इमेजिन करो, एक आता ऐसा टेबल है जिसमें 10 कॉलम है। हाउ कैन यू रिमेम्बर कि कौन सा कॉलम वैर कैर है, कौन सा कॉलम कैरेक्टर है, कौन सा कॉलम इंटीजर है, कौन सा कॉलम डेसिमल है? कैन यू रिमेम्बर दैट? तो आप कैसे वैल्यूज एंटर करते हैं, राइट? तो वहां पे एरर्स आते हैं आपके। इसलिए हमेशा जो सही तरीका है उससे ही टेबल इंसर्ट होने चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। फाइन, सो जस्ट गो थ्रू द चैट। और जो आपको टेक्स्ट, मैंने अभी एक मैसेज कॉपी किया है, ये कॉपी, इसका पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करके आप कहीं आपके नोटपैड पे कॉपी करके रखो, एवरीवन, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि इस तरीके से इंसर्शन होता है। ओके, बाकी तो मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट देने वाली। आई डू हैव अ स्क्रिप्ट विथ मी, आई विल बी गिविंग दैट स्क्रिप्ट टू यू as it is, sample. Yeah. So this is already the table and other things which we are already having. And the same time, I will give you sample one. ओके, इंसर्शन अभी करा नहीं है, इंसर्शन का भी स्क्रिप्ट में जनरेट करके आपको दे दूंगी। तो ये आपको दो टेक्स्ट, वन सेकेंड मैं एक काम करती हूँ, ये आपको दे ही देती हूँ, राइट? सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। तो सबकी टेबल एक जैसे बनेंगे, किसी का भी नाम गड़बड़ नहीं होगा, ऑर्डर जो कॉलम नेम है वो भी गड़बड़ नहीं रहेंगे, राइट? सो सारे हैं क्या इसमें, एक बार चेक करते हैं। डिपेंडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज है, 2 3 4 5 6 और 7, बराबर है। हमारे पास 7 टेबल है, राइट? मैं आपको ये फाइल दे रही हूँ, वन सेकेंड।
Kindly check everybody received this file. Kindly acknowledge. सबको फाइल मिल गया है क्या? Yes, ma'am. Okay, somebody had asked me, Srila, ma'am, please show question again, which is homework. Microphone was not working. Okay. Okay, 1 second, Srila. I'm just showing that also. Yeah. In fact, I'll be giving this also. 1 second. Everyone get this image. Try to download this image. It's a homework image. And please acknowledge कि मिला नहीं मिला. Okay. Done? Yes, ma'am. Good. Now, अभी मैं आपको ये तो आपका क्रिएशन का स्क्रिप्ट दिया अभी सैंपल डेटा में, मैं आपको इंसर्शन वैल्यू का भी स्क्रिप्ट देने वाली हूँ. ओके, आप पहले ये काम करोगे आज. यू हैव एम्पल थिंग टू डू, राइट? पहले आपको टेबल बनाना है, टेबल का प्रॉपर स्कीमा जो मैंने दिया हुआ है वो रन करना है. सभी के पास ये फाइल रहना चाहिए क्योंकि ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से ही कॉपी पेस्ट करके आपको बनाना है. आप समझ रहे हो ना क्या करना है आपको? यू जस्ट डू वन थिंग. बहुत सिंपल चीज करना है आपको, कुछ नहीं करना है. ये फाइल ओपन करना है. जैसे ही आपकी ये फाइल ओपन होगी ना, आपको ये ऐसे कैसे कॉपी करना है. कॉपी, आपको कुछ नहीं करना है. आपको जाना है आपके सर्वर में और कहीं पे भी पेस्ट कर दो. आप देखो पेस्ट कर दिया, ठीक है. जैसे ही मैंने ये पेस्ट किया, यहाँ पे मुझे एरर आया. क्यों एरर आया? क्योंकि दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है. अगर मैंने रीजन 1 करा, समझ लो मैंने रीजन 1 किया, ओके, और यहाँ पे रीजन 1 नाम से ही टेबल बनाया, तो उसका एरर चले जाएगा. 1 सेकेंड. ऑटो इंक्रीमेंट आया यहाँ पे. ओके ओके. 1 सेकेंड. Why this auto increment comes? Because this auto increment is the syntax of your MySQL. हाँ, MySQL में auto increment देना पड़ता है, जबकि आपके आइडेंटिटी आइडेंटिटी 1,1 ये हमारा इसका है सीक्वेंस. इंटीजर आइडेंटिटी, यहाँ पे हम इंटीजर, ओके. दिस सिंटेक्स इज फॉर MySQL. ओके, ऑटो इंक्रीमेंट जो पहले लिखा था वो जो है वो सिंटेक्स जो है वो मेरा MySQL का है. ओके, ये मेरा SQL सर्वर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है. ओके, अब मेरे को एक बताओ, जो मैंने फाइल दिया है वो सारा ऑटो इंक्रीमेंट से करा हुआ है. 1 सेकेंड, आई नीड टू चेक. या ये सब ऑटो इंक्रीमेंट वाला है, मतलब ये MySQL पे चलेगा. ओके, किसी को ऐसा है क्या जिसके पास MySQL नहीं है, वो SQL सर्वर यूज कर रहा है जैसे मैं यूज कर रही हूँ? शो, टेल मी फास्ट. अगर आप मुझे बता पाओगे तो ही मुझे समझ में आएगा ना कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर यूजिंग. हाँ, ओके. अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ कि एक और फाइल शेयर कर रही हूँ.
जो लोग SQL सर्वर यूज कर रहे हैं उनके लिए, ओके, स्क्रिप्ट। हेलो मैम, या मैम ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट वो ही काम करता है जो हमारा आइडेंटिटी 1,1 करता है। डिफरेंस क्या है कि अगर आप माई सिक्वल यूज कर रहे हो तो वहां पे उसका नाम ऑटो इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप सिक्वल सर्वर यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको आइडेंटिटी 1,1 यूज करना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। आपको फाइल मिला क्या सबको? कि वो श्रीला को मिला शायद, 1 सेकेंड, शायद वो सिर्फ श्रीला को मिला। ये वाला फाइल मैंने अभी SQL सर्वर के लिए भेजा है। दिस इज फॉर द SQL सर्वर। Those who are using SQL सर्वर और SSMS जो यूज कर रहे हैं उनके लिए ये बात का फाइल भेजा है। पहला वाला जो फाइल है वो those who are using MySQL, जो लोग MySQL यूज कर रहे हैं, for them they can use the first वाला टेक्स्ट फाइल। ओके, दोनों सेम है, बस सिंटेक्स डिफरेंस है। दोनों को सिंटेक्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए दो अलग अलग फाइल भेजी है। समझ में आया ना आपको? यस मैम। मिल गए हैं सबको? कि बार बार श्रीला को क्यों चले जाता है, आई डोंट नो। 1 सेकेंड, both files, have you received both the files? Please check it in your chat, please check, everyone please check। 8 लोग हैं मेरे मीटिंग में, 8 के 8 सभी चेक करो आपको फाइल मिला है कि नहीं, दोनों फाइल मिले हैं कि नहीं। मतलब इररेस्पेक्टिव आप SQL सर्वर यूज कर रहे हो, SSMS में यस काम कर मैम। रहे हो, तो भी आपको दूसरा फाइल रेफर करना है। अगर कोई लोग आप MySQL यूज कर रहे हो तो आप पहला वाला फाइल यूज करोगे। ओके, ठीक है। At the same time, I had given you the insert option as well. But अभी मैं insert का भी स्क्रिप्ट आपको जैसे ये दिया है ना टेक्स्ट फाइल, वैसे मे बी नेक्स्ट सेशन में आपको इंसर्ट का भी दे दूंगी। ओके, पर आपको एक डमी डेटाबेस हमारे केस स्टडी में नहीं कुछ करना है। ओके, प्लीज डोंट डू एनीथिंग इन द केस स्टडी। क्यों नहीं करना है? बिकॉज जब मैं आपको क्वेरीज लिखूंगी, अभी आज हम सिर्फ डिस्कस करते हैं अभी जो भी है अगले 5-10 मिनट, और अगले सेशन में जब हम एक्चुअल क्वेरी फायर करेंगे, हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, मतलब हम इसको एनालाइज करेंगे जो भी डेटा रहेगा इंसर्ट करने के बाद, तो उस केस में हमारा रिजल्ट, आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग विथ योर केस स्टडी जो आपको दिया है स्क्रिप्ट। आप आपके रेफरेंस के लिए एक डमी डेटाबेस बनाओ, उसमें डमी टेबल्स बनाओ, उसको डमी डेटाबेस टेबल्स को अल्टर करो, डिलीट करो, मतलब ड्रॉप करो। You can make that changes there, okay, but don't disturb your HRMS case study which I had shared with you. Okay, I hope my intentions are clear to everyone. Fine. Now the next thing we are having in before to get into the database case study, we are into insert. Okay, now I had already shown you the insert part. Update and delete I will be showing you a little bit later. Let me talk about the next category of the language is a DQL, that is most commonly language used by a data analyst, that is select query. Okay, so if you see even in the SQL server also I had used a select query here, the select command. Okay, so select command is basically used to fire, we just write the select command or just fire the select command to a database or a table to get something. Okay, so select command kahan use hota hai? Jahan pe humko kuch, we want something from the database. So select command is the most commonly used command, or we can say the statement. Some people call select statement, some people call select command. Okay,
तो टर्मिनोलॉजी का फर्क है, बाकी काम वो एक ही करता है. सो सिलेक्ट स्टेटमेंट रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. ओके, सो हमने अभी तक डीएमएल पे बात करी जहां पे हमने इंसर्शन देखा. आज हम डीक्यूएल पे बात कर रहे हैं जहां पे हम सिलेक्ट कमांड देखेंगे. ओके, so we are also talking about DQL command, that is a data query language. Okay, and this is the most thing we will be using as a data scientist. Okay, and here we are having a select statement or a select command, or some people call it the select command. Okay, now what is the use of this SQL select statement? Retrieves, one second, retrieves data from database. Okay, and when you write a select command ना, तो उसका जो result आता है, whenever you write a select command, the result which you get, okay, it is always, this data which you retrieved is always into form of table. हमको हमेशा table form में ही मिलेगा. And that is called result set. That is called result set. ये टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी. ठीक है, बीइंग अ एनालिस्ट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज. ओके, आपने आपके डेटा सेट पे क्वेरी फायर करने के बाद वॉट एवर यू आर गेटिंग, ओके, दैट यू हैव टू ट्रीट इट एज अ रिजल्ट सेट. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या बोल रही हूं मैं? Select is the most commonly used operation in database. Okay, so these are the basic things about the select. Okay, so for example we had already seen that select command जैसे हमने यूज करा यहाँ पे select स्टार ऑपरेटर रहता है, फ्रॉम कीवर्ड है और टेबल का नाम. सो टेबल नेम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने टेबल नेम, जैसे यहाँ पे ये सिंटेक्स हुआ और हमने यहाँ पे टेबल नेम दिया था रीजन. लुक एट दिस रीजन. रीजन में हमने ऑलरेडी वैल्यू इंसर्ट करी है, तो ये जो हमको मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दिस इज माय रिजल्ट सेट. ये क्या है मेरा रिजल्ट सेट. वेयर इज माय रिजल्ट सेट फ्रॉम रीजन. रीजन से मुझे रिजल्ट सेट क्या मिला यहाँ पे. दिस इज माय रिजल्ट सेट. आई होप यू आर एबल टू सी ऑन माय स्क्रीन व्हाट आई एम डूइंग हियर. Am I audible? Yes, ma'am. Please acknowledge whether you are understanding or not understanding. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Now you have ample things to practice, okay? Because today I had given you so many things to practice. आपको already script दे दिया है मैंने, आपको बना के दिखा दिया है लाइव सेशन में. टेबल कैसे बनते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट होती है वो भी बताया, लेकिन आपको इंसर्ट नहीं करना है अभी. ओके, इंसर्ट का भी मैं ऐसे ही स्क्रिप्ट देने वाली हूँ. पर आप क्या कर सकते हो, आप एक डमी डेटाबेस बनाओ. ओके, एक छोटा सा कोई भी सैंपल डेटाबेस, जस्ट क्रिएट अ सैंपल डेटाबेस. आपको बनाना है, यू हैव टू क्रिएट अ सैंपल डेटाबेस एंड add few basically sample or temporary tables into it and demonstrate DDL commands on that. ठीक है, ये आपको अपार्ट फ्रॉम HRMS करके आप देख सकते हो. ओके, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. बट जो स्क्रिप्ट दिया हुआ है उससे आपको ऐसा ही डेटाबेस बनाना है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था मॉर्निंग में, सॉरी नॉट मॉर्निंग में, स्टार्टिंग में. ओके, सो दिस इज HRDPT. आपको यही टेबल, यही डेटाबेस ऐसे के ऐसे ही बनाना है. देयर विल बी नो चेंजेस इन इट. ओके, व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, बिकॉज अगर आपने कुछ चेंज करा तो क्या होगा, जब मैं आपको क्वेरी फायर करके एनालिसिस करके दिखाऊंगी और आप करोगे तो आपको अलग रिजल्ट सेट मिलेगा.
जो आपका रिजल्ट सेट अलग रहेगा, फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे। इसलिए बेटर ये रहेगा कि जो मैं स्टेप बाय स्टेप दे रही हूँ आपको, वो ही आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? Yes, ma'am. Fine. Anyone having any doubt? We still have a 2 minutes to end the session. So anyone having any doubt, they can ask me the doubt, or else we can close the session here and we will meet on Friday to Ma'am, continue with the insertion topic. Yeah. मैम लाइक मुझे मतलब हम सभी को यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है और डेटा इंसर्ट नहीं इनसाइड मतलब इनसाइड द टेबल डेटा इंसर्ट नहीं करना है। नहीं करना है, क्योंकि आपको आप क्या करना है पता है क्या? आप सभी को ऐसा डेटाबेस बनाना है। I'll just show you the database. जो ये डेटाबेस है ना मेरा HRDPT, सबसे पहले आपको HRDPT बनाना है। उसके अंदर ये टेबल्स स्टेप बाय स्टेप आपको इंसर्ट, जो ये जो क्रिएट कमांड दिए हुए हैं ना, ये क्रिएट कमांड ही उन नोटपैड में है। आपने Yes. देखा क्या वो नोटपैड खोल के? तो आपको यस दिखेगा, राइट? तो वो नोटपैड खोलना है और आपको वहां से बस ऐसे कॉपी करते चलना है। जैसे जिसके पास अगर ये HRDPT का स्क्रिप्ट आया होगा ना, तो वो ओपन करेगा, यहाँ से ये कॉपी करेगा, ऐसे कैसे यहाँ पे, जैसे सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस लाइन नंबर 1, उसको यहाँ पे जाना है, उसके स्क्रीन पे एग्जीक्यूट क्वेरी न्यू क्वेरी फायर करनी है, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस 1 या जो भी डेटाबेस का नाम देना है आपको क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। ये ऐसे एग्जीक्यूट करना है। आप समझ रहे हो अभी आप चीजों को? यस मैम। जैसे मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाती हूँ, ये क्रिएट हो गया अभी डेटाबेस। दूसरा आपको क्या करना है, फिर से उसमें जाना है, फिर आपको लिखना है यूज दैट डेटाबेस। ओके, ये भी एक कमांड मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। यहाँ पे जाना है यूज दैट डेटाबेस 1 2 3, ओके, जो अभी क्रिएट किया है। क्लियर? ओके मैम। आइए एग्जीक्यूट करना है बस। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर आ गई, देखो यहाँ पे चेंज हो गया डेटाबेस, अभी जो बनाया वो उसमें Yes, ये ma'am. तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, अब ये तो बन गया, फिर उसके बाद आपको बनाना है रीजन टेबल। तो आपको ये रीजन टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कॉपी करना है, फिर से एग्जीक्यूट करना है। ऐसे आपको सातों टेबल एग्जीक्यूट करके रेडी रखना है, सो दैट जैसे मेरा टेबल यहाँ पे डेटाबेस पूरा क्रिएटेड है ना, ये HRDPT विद द 7 टेबल्स, वो आपके पास भी रहेंगे नेक्स्ट सेशन में। गॉट इट? ओके मैम। अब किसी को कोई डाउट है इसमें? इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप एक अपने अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए या खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक डमी डेटाबेस बना लो, उसका नाम 1 2 3 दो, ABC दो, उसके अंदर टेबल्स बनाओ, बना के देखो, एरर्स आएंगे, वो एरर्स को निकाल के देखो, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस मैम। Fine, we will stop here today and we will meet on Friday, so that by Friday everyone should have the same database which I will be using, and the same time I will be giving you the script for insertion। मतलब उसी दिन मैं insertion के script दूंगी, वो भी आपको ऐसे ही copy paste करके execute करना है। वो script execute करने में hardly आपको 10 मिनट लगेंगे, तो within a session only we will be doing it, and then we will be firing the queries using DQL command, that is a select command, and then we will get the result set on it। ओके और फिर रिजल्ट सेट को हम एनालाइज करेंगे। यही तो काम है हमारा डेटा एनालिस्ट का। गॉट इट? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस मैम। Fine, so we will ending the session here. Till then, please practice and get ready your database for by the next session. Okay, bye everyone.